So in last video we were discussing about various types of nutritional diseases, right? I told you about protein energy malnutrition, that was Marasmus and Kwashiorkor. I told you about anemia, right? What is anemia? Anemia is the anemia is said to happen when your normal hemoglobin, when your hemoglobin levels is below the normal range, right? That is what is anemia. And I told you that anemia can be because of various causes, right? The first one is because of iron deficiency, which is the most common type of anemia which is found in India. Then it can be because of vitamin B12, and it can also be because of folic acid. Now vitamin B12 is also called as cyanocobalamin, तो कहीं पे ये नाम लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत करना. Vitamin B12 means cyanocobalamin, and just like that folic acid means vitamin B9, right? It is also called as vitamin B9. So this was anemia as we discussed. Now let us study about the next one, that is goiter, right? What is goiter? Goiter is the enlargement of thyroid gland, right? There is a gland in your neck which is called as thyroid, and because of the deficiency of iodine, this thyroid gland produces your thyroid hormone. Now this thyroid hormone requires iodine, right? Iodine is incorporated in these thyroid hormones. Now because of deficiency of iodine, what happens is this thyroid gland is not able to produce enough amount of thyroid hormone, and because of this the gland thinks, oh, I need to produce more thyroid hormone, I need to produce more thyroid hormone. So because of that, because of iodine deficiency, this gland enlarges, right? Because of deficiency of iodine, less amount of thyroid hormone is found, is produced, and because of that the gland tries to compensate that and enlarges in size. This is what is called as goiter, right? So what is goiter? Goiter is the enlargement of thyroid gland due to deficiency of iodine, right? So that is to what has government done to prevent this iodine deficiency? This iodine has been fortificated into your food, right? What is fortification? Addition of a nutrient, right? Addition of a nutrient which was not already present in that food is fortification, right? आप कभी अपने जो घर में दूध आता है, सुधा का आता होगा या अमूल का, I don't think so, सुधा या मेधा ना, if you are belonging to Jharkhand and watching this video, अगर सुधा और मेधा का आपका ये आता होगा दूध, तो उसमें आप देखना नीचे उसके पैकेट में लिखा रहता है fortified with vitamin A and D. What does that mean? That means in that milk, added vitamin A and D has been added, right? Vitamin A and D has been added so as to enrich its nutritional value. So just like that, there has been fortification of your common salt, fortification of your common salt with iodine, सॉल्ट विथ आयोडीन, ठीक है? सो अगर आप नॉर्मल सॉल्ट आप जो खाते हैं, टाटा सॉल्ट है ना, बोलता है आयोडाइज्ड नमक, उसके ऐड में कभी देखना बोलता है टाटा सॉल्ट देश का नमक, एंड दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना? देखना अपने सॉल्ट के पैकेट में देखना, ऑल द सॉल्ट्स टुडे विच इज अवेलेबल इज आयोडाइज्ड इन इंडिया, राइट? एंड दिस हैज बीन अचीव्ड बाय गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द इंसिडेंस ऑफ गॉइटर हैज गॉन डाउन, बिकॉज हम जब भी नमक खाते हैं तो वी आर इंश्योरिंग दैट वी आर ऑल्सो हैविंग आयोडीन इन आवर डाइट, राइट? बिकॉज सॉल्ट is something which is used by all over India, all of the people in India, right? So now the next one is deficiency of vitamin A, right? So we saw the deficiency of protein, energy, iron, B12, folic acid, iodine, and now vitamin A. And vitamin A का कभी भी deficiency होगा, it will lead to a symptom which is called as night blindness, ठीक है? नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, दैट वाई इज दैट इज बिकॉज ऑफ योर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल, प्लीज रिमेंबर, विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नाइट विजन, है ना? अभी रूम की इतनी सारी लाइट जल रही है, जैसे ही मैं बंद कर दूंगी एक बार मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, माई आईज विल स्टार्ट अडेप्टिंग टू दैट डार्कनेस एंड आई विल बी एबल टू सी वेरियस थिंग्स. नाउ दिस अडेप्टेशन इज लॉस्ट इन पीपल हु हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ए, बिकॉज योर आयरन ए बोल रहे हैं, विटामिन ए, बिकॉज दिस विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नाइट विजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नाइट विजन, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, यू नीड टू हैव मोर ऑफ विटामिन ए. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए? येलो फ्रूट्स, राइट? येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है? आयरन का सोर्स जनरली जो होता है नॉन वेज लोग, है ना, नॉन वेज में बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता है, और आयोडीन आप सॉल्ट से लेते हैं ना. जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए दे शुड हैव गुड़, राइट? गुड़ इज़ अ वेरी द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. उसके अलावा स्पाइनिश एंड एवरीथिंग ऑल्सो ऑफ आयरन, बट द आयरन अवेलेबिलिटी इन देम इज़ वेरी लेस. सो इफ़ यू आर हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड, देन आई डोंट थिंक सो यू विल हैव दैट मच ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट, ठीक है? नाउ दिस नाइट ब्लाइंडनेस
is a symptom, right? You're not able to see at night. What disease does this deficiency of vitamin A cause? It is called as xerophthalmia, right? It is called as xerophthalmia. आपके लिए बहुत बड़ा वर्ड है, नया वर्ड है, बट ध्यान से समझना. Ophthalmia means related to eye, right? Ophthalmia means related to eye, and zero means dryness. ZERO का बात नहीं कर रहे. I am talking about XERO, right? I am talking about XERO, right? XERO, zero means XERO, that means dryness, right? That means dryness. So dryness of eye is what is the disease which is caused by deficiency of vitamin A, right? So कहीं आपको dryness of आई लिख देगा तो कंफ्यूज मत करना, दैट मीन्स दैट इज योर xerophthalmia, राइट? यहाँ पे आपका सिम्टम में क्या दिया है? ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, राइट? कॉर्निया इज वन ऑफ द लेयर ऑफ योर आई, ठीक है, एक आई का ही पार्ट होता है. सो ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया और eye is caused by vitamin A. Let us see the picture of this. See, this is the severe case of xerophthalmia. Are you looking at the eye of this person, how dry it has become, right? Obviously it can cause blindness in the worst cases, right? In very severe cases it can cause total blindness, right? And night blindness is the first symptom. ठीक है, चलो next. Now because of deficiency of vitamin D there is a disease which is called as rickets, right? You know the function of vitamin D. What is the function of vitamin D? Vitamin D helps in absorption of calcium, right? Calcium and vitamin D3 are interdependent, right? अगर vitamin D बॉडी में होगा तभी आपका कैल्शियम absorb होगा, नहीं तो अगर आप vitamin D अगर आपके बॉडी में कम है और आप कैल्शियम खा रहे हैं तो फालतू में खा रहे हैं, right? Why? Because the absorption of calcium is done only by vitamin D3, right? Now this vitamin D3 या विटामिन D, ठीक है, जिसको कि कोलीकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, अगर ये विटामिन डी आपके बॉडी में कम होगा तो क्या होगा? दिस विल लीड टू लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी व्हाट विल हैपन? योर बोन्स विल गेट वीक. यू नो व्हाई आर योर बोन्स हार्ड? योर बोन्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन देम. सो बिकॉज यू नो कैल्शियम इज नॉट बीइंग एबल टू बी absorbed in your body, because of this there is no deposition of calcium in your body, and which will lead to, you know, weak bones. This will lead to soft bones, right? And this disease is called as rickets, right? This is called as rickets. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिकेट्स. ठीक है, और ये चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, उनका बोन सॉफ्ट हो जाता है. और अडल्ट्स में क्या होता है? अडल्ट्स में इसी को हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं. ऑस्टियो मतलब बोन एंड मलेशिया मतलब कुछ माल फॉर्मेशन, कुछ खराब हो रहा है. आप और ऑस्टियोमलेशिया ना भी याद रखें, प्लीज रिमेंबर रिकेट्स इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ, यू नो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. एंड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी व्हाट इज हैपनिंग? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज इम्पेयर्ड, एंड बिकॉज ऑफ विच द बोन्स गेट सॉफ्ट, राइट? See the diagram of this child. See, picture this side. Are you seeing how the legs of this child has got bent? देख रहे हो, नॉर्मल लेग्स कैसे होना चाहिए था? ऐसे सीधा होना चाहिए था, बट द लेग्स ऑफ दिस चाइल्ड हैज बीन बेंट. व्हाट डज दैट मीन? दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सॉफ्ट बोन्स, दैट इज रिकेट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसके साथ याद रखना, जो गर्ल्स होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम का कमी होता है. आपके घर में है ना, आप लोग तो अभी छोटे हैं, बड़े होंगे या कुछ होंगे थोड़ा में, तब गर्ल्स का जनरली ये प्रॉब्लम आता है. क्या होता है? नस चढ़ जाता है बोलते हैं, राइट? यू नो द मसल्स दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे रिमेन इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, राइट? कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल. तो अगर आपका नस चढ़ जाता है ना, जिसको बोलते हैं एकदम अचानक से ऐसे स्पाज्म आ जाता है मसल में, जो कि बहुत देर के बाद आपका ठीक होता है, दैट मीन्स यू आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम. एंड द मोस्ट कॉमन deficiency of calcium is because of deficiency of vitamin D3. because हम लोग इंडिया में काफ़ी कैल्शियम रिच फूड खाते हैं, बट अगर स्टिल आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, दैट मीन्स दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3. तो हाउ टू कंट्रोल इट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी आपको सन से मिलता है. नाउ प्लीज रिमेंबर, सन से ऐसे विटामिन डी गिरता नहीं है. यू हैव अ थिंग इन योर बॉडी विच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल. व्हेन दिस, यू नो, व्हेन यूवी रेज ऑफ सन फॉल ऑन दिस कोलेस्ट्रॉल, इट कन्वर्ट्स दिस कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी, राइट? ऐसा नहीं है कि आपका, है ना, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू थिंक कि सन से ऐसे विटामिन डी गिरता है. नो, राइट? That is just purely light. When that UV light falls on cholesterol, it gets converted into vitamin D3 और कोलीकैल्सिफेरॉल. ठीक है, तो जो लोग भी, नेचुरल सा बात है, जो लोग भी आपके धूप में नहीं निकलते, जैसे कि मैं, है ना, या आपके घर में कोई भी होगा जो ऑफिस जाते हैं, है ना, रेगुलर धूप में नहीं निकलते, उनमें जनरली विटामिन डी डेफिशिएंट होता ही है ना, जैसे कि मैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली गेट योर विटामिन डी चेक्ड वंस, है ना, जो लोग भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग भी हल्का भी धूप में नहीं निकलते हैं.
ठीक है, चलिए. सो विद दिस वी एंड विटामिन डी एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बी. है ना, आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है. विटामिन बी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. विटामिन बी एक तो हम लोग ने देखा, B9 देखा, B12 देखा, राइट. B9 एंड B12, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन, दे कॉज्ड एनीमिया, राइट. दो नॉट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया बट दे कॉज एनीमिया. इसके अलावा प्लीज रिमेंबर विटामिन B1 causes a disease which is called as beriberi, and vitamin B3, deficiency of vitamin B3 causes a disease which is called as pellagra. Let me show you the diagram so that you can remember, बट इसका बस आप नाम याद रखना, है ना. सो दिस इज बेरी, इसमें कैसे स्किन में ऐसे स्पॉट्स हो जाता है रेड कलर का, राइट. एंड दिस इज योर पेलाग्रा, है ना. इसका देखो कैसे स्किन में अजीब सा रैशेस एंड डिपोजिशन हो गया है, देख रहे हैं, सी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज विटामिन ये बेरी एंड पेलाग्रा. एंड द लास्ट डिजीज विच विल स्टडी इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, दैट इज कॉल्ड एज स्कर्वी. स्कर्वी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडिंग गम्स, है ना. आपका जो गम्स होता है उसका हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी, एंड व्हेनेवर यू हैव गॉट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी यू विल हैव स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स, राइट. एंड योर टीथ विल गेट लूजन लाइक दिस. See, this is the picture of a bleeding gum, right. Now in addition to this scurvy or bleeding gums, vitamin C is also one of the most anti, now this is also called as ascorbic acid. ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाम लिखा है, आप जो कंपटीशन के लिए मतलब NTC वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये जान सकते हैं, है ना. सो दिस विटामिन C, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट. This is also a very important antioxidant, right. Antioxidant क्या होता है? This is responsible for your immunity. इम्यूनिटी, है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इम्यूनिटी के लिए, राइट. अभी आपने देखा होगा जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड हो रहा था उसमें लोग प्रोफाइलैक्टिकली विटामिन सी का टैबलेट्स ले रहे थे, राइट. विटामिन सी का, जिंक का, डी का, वाई टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी. विटामिन सी इज अ वेरी गुड इम्यून बूस्टर, राइट. ये आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको. सो विद दिस वी कंप्लीट वेरियस टाइप्स ऑफ nutritional diseases. Now let us look on to your national immunization schedule, ठीक है, your national immunization schedule, and let us look into immunization and vaccination first, ठीक है. So what is meant by vaccination and immunization? So first we will study about immunization, ठीक है. Please write down what is meant by immunization. When a person has ability to produce antibodies against a disease, that person is said to be immunized against that disease. मतलब कि आपके बॉडी में, अभी आपने कोविड का वैक्सीन लिया होगा, राइट. एंड इस कोविड का वैक्सीन हमने क्यों ले रहा है? बहुत आपने सुना होगा एंटीबॉडी. व्हाट इज दिस एंटीबॉडी? दिस एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर fighting off against the pathogens which are invading in your body, right. These antibodies are in fact produced by your WBCs. So when your body already knows, can produce this antibody in response to that disease, so that this virus cannot cause a disease in you, this is what is meant by immunization, right. And what is vaccination? See, what happens is when first time a virus enters in your body, right, it will cause the disease, right. Our body, it will take time, first time when मान लेते हैं कि पहली बार किसी के घर में चोरी हुई, ठीक है, तो क्या होगा? that person will be totally unexpected. that person must not have expected that thievery to happen, right. so everything of that person will go, but next time उसके ही घर पे चोरी करना मुश्किल होगी. why? Because now he would be cautious against thieves and everything. It's just the same condition with our body as well, है ना. What happens is when for the first time an organism comes in our body doesn't know how to react, right. So because of that organism already comes and causes all the disease and everything happens, right. But when that same disease comes for the next time, that same organism comes for the next time in our body, now our body has got the memory of that organism, है ना. Our immune system is very clever, right. It knows it recalls that organism. So when that same organism comes for the second time, now our immune system knows, अच्छा इसके against ऐसे fight करना है, and that that
our immune system will destroy that particular organism, and now that organism will not be able to cause a disease, because as soon as it will enter, our immune system will now be very strong to fight against that disease, right? So to have this immunization, so that our immune system knows to fight against that disease, that is what is called as vaccination. ठीक है, सो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोरोना वायरस है, एंड आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नाउ दैट कोविड कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट? सो मान लेते हैं कोरोना वायरस है, ठीक है. नाउ दिस कोरोना वायरस व्हेन इट विल फर्स्ट एंटर इनटू योर बॉडी, नाउ योर बॉडी डज नॉट नो, इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफ योर बॉडी एनकाउंटरिंग दिस कोरोना वायरस. सो दिस कोरोना वायरस विल नाउ कॉज अ डिजीज इन यू, ठीक है. बट what happens is, but by some mechanism, let us assume that we disarm this corona virus, है ना. ये जो कोरोना वायरस का डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी था, इसको हमने साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया. नाउ दिस वायरस व्हेन दिस disarmed virus which cannot cause a disease in your body is injected into your body. Now what will happen? Now this coronavirus is not able to cause a disease in your body, but what will happen, your body does not know that that is not able to cause disease in your body. ठीक है तो वही वायरस, बस हमने क्या किया कि उसका डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी हटा दिया, बट आपके बॉडी को ये नहीं पता है. तो जब हम क्या करेंगे, ऐसा डिसआर्म्ड कोरोना वायरस को मेरे बॉडी में डालेंगे, व्हाट विल हैपन, मेरा बॉडी क्या ट्राई करेगा, धीरे धीरे करके उसके अगेंस्ट इम्यून होने का ट्राई करेगा, एंटीबॉडी बनाने का ट्राई करेगा. इसमें पहली बार में टाइम लगेगा. अब जब रियलिटी में इसके बाद मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आएगा तो क्या होगा, माय बॉडी हैज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड दोज एंटीबॉडीज, एंड नाउ दिस विल नॉट लेट द कोरोना वायरस, द रियल कोरोना वायरस कॉज डिजीज इन अस, राइट? एंड दिस इज हाउ आवर बॉडी विल बी प्रोटेक्टेड. नाउ वी विल बी इम्यूनाइज्ड, राइट? सो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इज एक्चुअली अ डिसआर्म्ड पैथोजन, राइट? हमने जब किसी ऑर्गेनिज्म का डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी ही खत्म कर दिया और उसके बाद उसको हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि वो मेरा इम्यूनिटी बना दे, ताकि वो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बना दे, दैट इज व्हाट इज अ वैक्सीन, right? That is what is a vaccine. I hope आप clear है what is the difference between immunization and vaccination, right? Immunization means having antibodies in your body so that you can fight against organisms. And what is vaccination? Vaccination is that disarmed pathogen which is responsible for immunization against a disease in your body. ठीक है, so please write down what is vaccination. Vaccination is administration of a vaccine. Vaccination is administration of a vaccine. And what is a vaccine? Please write down, vaccine is a disarmed pathogen or a killed pathogen which is responsible for building immunity in our body against an organism, right? So this is the difference between immunization and vaccination. I hope आपको समझ में आया, इसका difference आता है, ठीक है, एग्जाम में. Now, what was the first vaccine which was created? The first vaccine was created against the disease smallpox. ठीक है, it was first created against the disease smallpox. ठीक है, and who created this disease? Who created this vaccine? This was created by Edward Jenner. ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि ये जो स्मॉल पॉक्स पहले था ना, दिस वॉज डेडली. मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था वायरल इन्फेक्शंस वाले ये पे. तो एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि पहले स्मॉल पॉक्स वॉज अ डेडली डिजीज, राइट? मेनी पीपल डाइड ड्यू टू दिस डिजीज. नाउ एडवर्ड जेनर व्हाट डिड ही सी? ही सॉ दैट द पीपल हु वर वर्किंग विथ काउज दे गॉट काउ पॉक्स, राइट? उनको एक अलग तरह का पॉक्स हुआ, काउ पॉक्स विच वॉज माइल्ड. बट जिनको एक बार काउ पॉक्स हो गया उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. दे वर इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, right? So he thought that there must be something कि जो कि एक बार अगर हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा, and that is how Edward Jenner found the vaccine for smallpox. And today the smallpox is eradicated from the world. The smallpox has been eliminated from this world, right? Smallpox is no longer a disease in our world, right? Smallpox is no longer a disease in our world. This has successfully been eliminated from our world. And what is the other disease which has been eliminated from India? I told you that is polio, right? Polio has been eliminated from India, right? But अभी भी इसके अगेंस्ट वैक्सीन दिया जा रहा है because वर्ल्ड से एरेडिकेटेड नहीं है, कभी भी कहीं भी आ सकता है,
ठीक है, बट अभी के लिए हमारे इंडिया से एलिमिनेट हो गया. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू डिजीजेस. स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन eliminated from India and polio has been eradicated from India, right? Smallpox has been eradicated from the world and polio has been eradicated from India. So this was what you needed to know about vaccine. Now there are various types of vaccine which are endorsed by government of India free of cost for everyone, right? For everyone. The main which you have to remember is first one is BCG, right? BCG क्यों आपको जानना है? Because this is against tuberculosis, right? This is against tuberculosis. मैंने TB पढ़ाते हुए भी बताया था. And आपके लेफ्ट अपर आर्म में एक दाग होगा. I am very sure everyone has got this vaccine, right? यहाँ लेफ्ट अपर आर्म में आपके एक दाग होगा वैक्सीन का. Why is that? That is because of vaccine BCG, right? तो अगर आपसे पूछे कि ये दाग कोई क्यों है, that is because of your vaccine BCG, right? Next one is hepatitis के अगेंस्ट मिलता है, ठीक है. हेपेटाइटिस के अगेंस्ट अब जो मिलता है हो गया. उसके अलावा आपको और क्या मिलता है? हेपेटाइटिस के अगेंस्ट मिलता है, फिर पोलियो के अगेंस्ट मिलता है OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट? ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की. अमिताभ बच्चन का ऐड पता नहीं आपने देखा है कि नहीं. जब हम बच्चे थे तो हमारे टीवी में तो हर दिन आता था, है ना, अमिताभ बच्चन के साथ 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है. अभी भी मैं आपको उसका आगे का दिखाऊंगी, ठीक है ना, ठीक है. चलिए, OPV हो गया. इसके अलावा एक नया वैक्सीन आता है पेंटा, ठीक है. इस पेंटा में आपका क्या क्या होता है? एक तो DPT होता है. व्हाट इज DPT वैक्सीन? DPT इज अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड T फॉर टेटनस. T फॉर टेटनस, है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है. नया वैक्सीन आता है, इसमें ये पुराना वाला चार्ट है. सो द न्यू वैक्सीन इज कॉल्ड एज पेंटा. दिस पेंटा हैज़ गॉट वैक्सीन अगेंस्ट DPT, ठीक है. DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस. DPT के बदले अब हम लोग को पेंटा पड़ता है, ठीक है. DPT तो होता ही है. इसके अलावा इसमें क्या होता है? हेपेटाइटिस B भी होता है, ठीक है. इसके अलावा इसमें हेपेटाइटिस B भी होता है. आप लोग में से बहुत कोई टेटनस का भी इंजेक्शन लिए होंगे, वैक्सीन लिए होंगे ना, कहीं पे भी चोट लग जाता है, यू ऑलवेज गो एंड टेक द टेटनस वैक्सीन, है ना. मैंने आपको टेटनस पढ़ाने के टाइम बताया था. याद रखना, रेबीज वैक्सीन इज नॉट इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. जो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ज़रूरी है लेना, है ना, दीज आर डेफिनेटली, यू शुड डेफिनेटली टेक. रेबीज़ वैक्सीन ज़रूरी क्यों नहीं है? बिकॉज रेबीज़ उनको ही पड़ता है जिनको अगर डॉग बाइट होता है. अगर डॉग बाइट नहीं होता है तो आपको रेबीज़ लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एंड इसके साथ इसमें विटामिन ए भी दिया जाता है. वाई? बिकॉज विटामिन ए जो होता है वो बहुत लोग में डिफिशिएंट होता है, तो बच्चों को पहले ही विटामिन ए दे दिया जाता है इम्यूनाइजेशन के साथ ही, ताकि उनको ज़ीरोप्थैल्मिया नहीं हो, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स विच यू नीडेड टू रिमेंबर, राइट. अगर आप नेट पे सर्च करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, आपको ये चार्ट मिल जाएगा, ठीक है. विद दिस वी एंड. लास्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स endorsed by the government for your control of these diseases, and I will discuss a little bit about cancer and other non-communicable diseases. Okay, thank you.